On behalf of the Congress Party from this podium, we seek the removal, the departure, the exit of the collaborator for violating the Constitution, the CVC. He must go. It is irrelevant whether he resigns or is sacked, but he must go. Just look at some simple facts. It is clear that the CVC is acting as an ambassador for Asthana. It is clear that he is acting as an agent and a messenger for the government to do their hatchet jobs. It is clear that after acting as an ambassador, after lobbying for Asthana, doing advocacy for Asthana, the CVC is writing a report which is the entire basis of the committee's decision. The reports in your newspapers today quote objective facts. They can't be denied, they have not been denied. They are verifiable. One objective fact is that on so and so date, the CVC met Mr. Verma for more than an hour, and CVC came to Verma, not the other way around. That's 6th October. Now, this is in black and white by Mr. Verma. Has it been ever denied? Nobody's denied it. The CVC not denied it. It can be verified whether he came or not on that day. Second, the purpose was to improve the appraisal report of Asthana is directly recorded. It is also recorded that the existing report was of Asthana of doubtful integrity, and the CVC simply suggested that if this is changed, modified, then everything will be okay, quote unquote. All is well if you do what we are requesting you to do. This is written in writing by Verma. Where is the denial? Third, Verma has also written in great detail that I could see that the CVC was batting entirely for Asthana, as if Asthana was the most important person in the government. And that is why the CVC has forgotten that he has to be vigilant for public interest. He has to be vigilant for the nation. He does not have to be vigilant for Asthana. He does not have to be a puppet, a vigilant puppet in the hands of the political masters who want Asthana in that place. Till now, friends, we had been told that only the CBI was a caged parrot. We are now seeing a new vigilant slave of the government, the collaborator for violating the Constitution, the CVC. The question arises, why was he acting as he was acting? The question arising, at whose behest was he acting as he was acting? Well, the answers are self-evident. None except the top two people in this country who rule this country dictatorially can claim the power to treat and make the CVC act like a puppet. And these master puppeteers can only be doing it to hide something. To hide something like Rafael, because only Rafael can make them try and make the CVC act like a puppet. I want to remind you, friends, that the data and the facts in writing deserve an immediate action, and that action must start with the removal and the sacking of the Chief Minister, of the Chief Vigilance Commissioner. I must also remind you that the CVC himself, as we told you yesterday, is neither the
the removing nor the appointing authority. And yet, you see the sequence of events, it shows you how he has acted as the hatchet man of the government. Remember, on 23rd October, he abruptly cancelled his visit in the night to Denmark. Abruptly. Number two, on same 23rd October from 8 to 12:30, they sat till midnight to draft the order of removal of Alok Verma. At 12:30 or 1, the CVC order is taken to the ministry and the hatchet job is complete, of course, and that is the only report. The Supreme Court set it aside on the ground that only the committee can decide, not the CVC. But the same report is used by the committee to set aside the tenure of Mr. Verma. तो दोस्तों, इन तथ्यों से बड़ा स्पष्ट है कि राफेल की जांच से बचने के लिए चौकीदार ने सीवीसी को कठपुतली बना दिया है। अगर मोदी सरकार में रत्ती भर भी शर्म बाकी है तो तत्काल, और हम ये कांग्रेस के बिहाफ पे मांग कर रहे हैं, सीवीसी को हटाना तुरंत चाहिए। चाहे वो इस्तीफा दें या हटाए जाएं, निरस्त किए जाएं, वो एक डिटेल की बात है। लेकिन इस प्रकार की लुकी छिपी, इस प्रकार की असंवैधानिक कठपुतली वाला व्यवहार सीवीसी से अपेक्षा नहीं हो सकती। हां, कोलैबोरेटर फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन से जरूर अपेक्षा हो सकती है। आज आपने क्या देखा है? आपने देखा है स्पष्ट रूप से कि ऑब्जेक्टिव तथ्य जिनको आप और हम पुष्टिकरण कर सकते हैं वो लिखित रूप से आए हैं पब्लिक डोमेन में। सीवीसी एक दूत बन गए हैं अस्थाना के लिए। सीवीसी एक एजेंट बन गए हैं, एक नौकर बन गए हैं, एक संदेश ले जाने वाले बन गए हैं, मैसेंजर सरकार के लिए, सरकार के सब गलत और कारनामे करने के लिए। एक वकील बन गए हैं और लॉबिस्ट बन गए हैं अस्थाना के लिए और सरकार में जो अस्थाना को सपोर्ट कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव तथ्य क्या हैं जिनका पुष्टिकरण की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो साफ पारदर्शिता से आपके सामने है। एक तिथि को अक्टूबर में 1 घंटे से ज्यादा सीवीसी मिलने आए वर्मा से। ये रिकॉर्डेड है, लिखित है। क्या ये मीटिंग पुष्टिकरण नहीं हो सकती? क्या इसका मनाही हुई है? इसका नकारा गया है किसी के द्वारा? उस 1 घंटे के मीटिंग में बार बार ये कहा गया कि ऑल विल बी वेल, एवरीथिंग विल बी ओके। अगर जो एंट्री है उनकी सर्विस एंट्री अस्थाना की डाउटफुल इंटेग्रिटी वाली, उसको बदल दिया जाए, उसको सुधार कर दिया जाए। ये सब तो लिखित है, इसका भी कोई डिनायल नहीं आया अभी तक। और मैं वापस स्पष्ट कह रहा हूं कि इनमें से कोई लिखित चीजें 100% पटनायक जी को नहीं दिखाई गई हैं। मैं इसके आगे आरोप लगा रहा हूं कि इसमें पूरा संदेह है हमें कि इसमें से 100% या 99% उच्चतम न्यायालय को भी नहीं दिखाई गई होंगी। और इससे जाहिर है कि आप केंद्र के लिए, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए विजिलेंस कमिश्नर नहीं है। आप विजिलेंस रखते हैं, सतर्कता आप रखते हैं सिर्फ अस्थाना के लिए, और अस्थाना के राजनीतिक मालिकों के लिए आप केंद्रीय सतर्कता रखते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए। मैं याद दिलाऊं कि ये वही सीवीसी हैं जो डेनमार्क जा रहे थे 23 अक्टूबर को, अंतिम क्षण में अपने यात्रा को निरस्त किया, कैंसिल किया। 8:30 से 12 बजे रात तक बैठ के सिर्फ एक काम किया, सरकार के आदेश पे, प्रधानमंत्री के आदेश पे, कि किस प्रकार से वर्मा को हटाना है, रोकना है। उस ऑर्डर को लेकर वर्मा को 1-2 बजे सर्व किया गया, रोका गया। अब रोचक बात सुनिए, वो हटाना तो उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया सिर्फ एक आधार पे कि समिति कर सकती है, सीवीसी नहीं कर सकता।
क्योंकि सीबीसी न नियुक्त करने वाली संस्था है न हटाने वाली। लेकिन उसी सीबीसी रिपोर्ट को आधार बना के, जिसको उच्चतम न्यायालय ने नहीं देखा था, तो उच्चतम न्यायालय ने हटाया था किसी और लीगल ग्राउंड पे, उसी का आधार बना के वापस तुरंत प्रधानमंत्री जी की समिति ने 2-1 के आधार पे, फिर कौन सी रिपोर्ट है ये, कौन से सीबीसी है ये? आप पहले वकील बनते हैं, दूत बनते हैं, एजेंट बनते हैं, संदेशकर्ता बनते हैं अस्थाना के, और फिर अस्थाना के आरोपों को लेकर रिपोर्ट में लिखकर उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, और वही पुलिंदा आपकी पैरवी का और अस्थाना के आरोपों का वही पुलिंदा समिति के निर्णय का आधार बन जाता है। और मैं चुनौती दे रहा हूं कि इसमें से कितना दिखाया आपने, शेयर किया पटनायक साहब से, और मैं आगे चुनौती दे रहा हूं कि हमारे पास कागजात नहीं है, लेकिन पूरा संदेह है कि इसका आंशिक रूप भी उच्चतम न्यायालय से शेयर नहीं हुआ होगा। तो ये क्या हो क्या रहा है? हमने केज्ड पैरेट सुना है सीबीआई के बारे में, आज हम देख रहे हैं कि कोई नया एक सतर्कता का एजेंट और दूत सरकार का और अस्थाना का, न्यू विजिलेंट स्लेव ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑफ अस्थाना हैज बीन बोर्न। हम कहना चाहेंगे बड़े स्पष्ट रूप से कि प्रधानमंत्री रामलीला मैदान से बार बार ये सच्चाई का दंभ और संदेश देने का प्रयत्न करते हैं देश को, आम नागरिकों को। रामलीला मैदान से वो ऐसी बातें करते हैं क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को प्रतीक माना जाता है सच्चाई का। ये आपकी सच्चाई की परिभाषा है? यह आपकी सतर्कता, स्पष्टता, सच्चाई का द्योतक या मापदंड है? ये ऐसी सच्चाई क्या बुराई के ऊपर होगी? हम प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा स्पष्ट कहना चाहते हैं कि न्यूनतम आपने अगर नहीं हटाया सीबीसी को, तो आपका झूठ और सच का सच्चाई या सच्चाई का सच पूरे देश के सामने बहुत निकट जल्दी आने वाला है। रूप से हमने अभियान आज शुरू किया है, आपके जरिए शुरू किया है, क्योंकि ये खबर अभी आई है और आप ही लोगों ने, इसीलिए प्रेस को माना जाता है। मैं प्रेस के किसी अंग की बात नहीं कर रहा हूं। जब प्रेस ऐसे सूचनाएं, ऐसे तथ्य प्रकाशित करती है, और ये प्रकाशित चीज है, कोटेशन मार्क में है, और इसको अभी तक नकारा नहीं किसी ने, तो इसलिए एक प्रकार से तो मैं बधाई भी देता हूं आपको। लेकिन साथ साथ इसका निरंतर एक अभियान चलेगा, चलना चाहिए। और हमारी बात नहीं, हमने तो उठाया है, लेकिन देश का हर अंग ये जवाबदेही चाहता है। देश का हर राजनीतिक पार्टी ही नहीं, आम आदमी भी यही जवाबदेही चाहता है। किस प्रकार से ये एक कॉन्स्पिरेसी है 23 अक्टूबर की रात से लेके हर अंग को सबऑर्डिनेट करना, सबवर्ट करना, उसको पंगु बनाना, इसमें माहिर है ये सरकार। देखिए आप एक गंभीर मुद्दा उठा रहे हैं। मैंने अभी अभी आते आते देखा है, मेरे कॉलीग या इसकी तथ्यों को जान करके हम आपके साथ समक्ष होंगे इसके विषय में, लेकिन मैं अभी कह नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास सब तथ्य नहीं है। लेकिन हाँ, आपके मुद्दे के विषय में कांग्रेस पार्टी विचार करके आज या कल में आपसे आमुख होगी। सुमोटो खत्म कर ले, फिर आपसे ले लूंगा। आई विल कम टू यू, यानी सीबीआई सीबीसी इश्यूज पे। हाँ हाँ, No, it has nothing to do with the Rafale issue now. Rafale issue is so much in the public domain. Where is the question of changing any stand? Because there is no stand required for Rafale. They are facts. We have asked 10 questions. Rahul Gandhi has incessantly asked 10 to 20 questions. Those are fact-based questions. There is no stand on it. We are getting no answer except spin doctrine.
there is no connection now between that stand, as you call it, and this issue. Today we are now showing the motivation, the motive, the reason, the nefarious thinking behind the government, which has led to this whole chain. Can you not see the chain? The chain is clear. That first, and let me very quickly summarize, it's important. You first try to push in Asthana time and again, and this starts from 2017. You push him despite adverse reports. He is your blue-eyed favorite boy. Number two, as you find that the CBI director, no less, the head of the institution, is sticking to his stand, you find ways and means of removing him, and before removing him, making him lame duck. Three, around that time, Rafale has reached its peak. Everybody in the country, not only Congress party, others have come to you with a complaint. Number four, midnight operation is mounted on 23rd October. The tool, puppet made by the government, suborned by the government, subverted by the government, is a high institution called the CVC. It's the funniest irony of fate that somebody who has to be vigilant, his name is vigilance, is completely subverted. Those facts I'm not repeating. Then, number five, within hours, in 3 hours, at 1 o'clock in the night, you are removed. Within 4 hours, 5 new people are transferred, 5 new people are appointed. Judgment of Supreme Court 77 days later sets aside. Immediately, first day adjournment refused to Mr. Kharge. Second day removal happens. Removal happens on the same report of the CBC, exactly the same report, and now it is shown that the CBC was acting as an agent of Asthana, and the CBC report adopts Asthana's allegations. I am now not repeating myself because I have showed you that 4 out of 6, which are the only allegations made out, are vague, unsubstantiated, trivial, stale. So the government, we said yesterday, don't forget, that the shoulder of the CVC is first lent by the CVC, happily, willingly, and then used by the government to fire bullets. उनकी आड़ में सब हो रहा है, और इसलिए हमें कोई विश्वास या आशा नहीं है कि जिस कंधे की आड़ पे आप ये गोलियां चला रहे हैं, उसी कंधे को आप हटाएंगे और या वही कंधा अपने आप इस्तीफा देगा. Finished on this, right? Okay, lady was waiting for a while. Let's. मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये विकृत कुतर्क क्या है. क्या इस देश में कभी भी गठबंधन सरकार बनी नहीं इससे पहले? क्या मोदी जी मजबूर, लाचार और बेकार बताते हैं उस सरकार को जिसमें मोदी जी की पार्टी जनता दल के साथ 1977 में जो शामिल हुई थी? वो कौन सी सरकार थी? मिली जुली जिसको आप कहते हैं. जब आप चाहें तो मिली जुली, जब वो चाहें तो मजबूर. उसके बाद कितनी बार हुई हैं सरकारें? 89 में जिस सरकार का आपने समर्थन किया राजीव गांधी के विरुद्ध, वो कौन सी सरकार थी? वो गठबंधन की थी कि नहीं? 91 में भी एक प्रकार से गठबंधन की सरकार थी, अगर आप उसको टेक्निकली देखा जाए तो माइनॉरिटी सरकार थी. तो सब सरकारें निकम्मी हैं, सिर्फ बीजेपी सरकार अच्छी है. सबसे महत्वपूर्ण वाजपेयी जी की सरकार कौन सी सरकार थी? तो ये क्या एक नया इतिहास लिखना, बरगलाना, और एक प्रकार से देश के रीति रिवाज, प्रादेशिक पार्टियां, गठबंधन की प्रक्रिया, सबको गाली गलौच देना है, अपमानित करना है. अरे भाई, प्रादेशिक पार्टियां और साथ मिलना जुलना असंवैधानिक नहीं है. अपना संविधान पढ़ के आइए. और मैं एक चीज और बता दूं आपको, गठबंधन की सरकारों में कई ऐसे फेज आए हैं, विशेष रूप से 91 के बाद, जबकि विकास की दर सबसे उत्तीर्ण रही है, सबसे उत्तीर्ण रही है. कई गोल्डन बजट्स आए हैं देवेगौड़ा जी की सरकार के वक्त. तो इसलिए एक अपने उल्लू सीधे करने और आपको झुटलाने या बड़गलाने के लिए कहने की बातें होती है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है.
देखिए ये सब आपको उनसे पूछना चाहिए, मैं कैसे कोई टिप्पणी कर सकता हूँ, मेरे को कोई ऐसी सूचना नहीं है, कोई ऐसी विकल्प नहीं है, कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है। ये सब प्रश्न आपको उनसे पूछने चाहिए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार बीजेपी किसी भी स्वतंत्र सोच का असहिष्णुतापूर्ण बर्ताव करती है, वो आप इस केस में भी देख रहे हैं। अब देखिए मैं क्या कहूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि पासवान जी दो दो तीन तीन घोड़ों को एक साथ नहीं दौड़ाए, गिर भी सकते हैं, किसी एक घोड़े में जम के बैठ जाएं। इतनी उनको अगर असंतोष है तो असंतोष को सिर्फ शब्दों द्वारा प्रकट न करें, ठोस एक्शन लें, क्योंकि जनता जनार्दन भी सब समझती है कि जो अंग्रेजी कहावत है रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड, तो समटाइम्स क्या होता है कि ना हेयर मिलता है ना हाउंड मिलता है। आपने इस प्रकार के वक्तव्य पहले दलितों के बारे में भी कहे, असंतोष व्यक्त किया है सरकार के प्रति, गुस्सा भी व्यक्त किया है, उसको आप ठोस डीड्स में कब परिवर्तित करेंगे, ये देश पूछ रहा है आपसे। शब्दों और कर्मों के बीच में जो खाई है उसको पाटना जरूरी आवश्यक है। ओके, थैंक यू।